Hello, myself Kuldeep Rathod, Team Mathematics CLC Seeker. We are going to discuss the Techno 2025 paper Mathematics Class 10 Section A. So, decimal expansion of rational number 243 upon 2 power 5 3 power 5. Basically 243 is the 3 power 5. So, 3 power 5 3 power 5 cancel. Now it becomes 1 upon 2 power 5 into 3 5 power 5. It is the type of a upon 2 power m and 5 power n type. So it is always terminating decimal type according to the theorem. Now the next question is second number. 7 plus 4 root 3 is equals to root a plus root b, then a minus b whole square is. So 7 plus 4 root 3. 7 plus 4 root 3, you have to calculate this 7 plus 4 root 3. Root over 7 plus 4 root 3 is equals to root a plus root b. Now after squaring both sides, we get 7 plus 4 root 3 is equals to a plus b plus 2 root ab. That is equals to this. By comparing a plus b is equals to 7 and root ab is equals to 2 root ab is equals to 4 root 3. Now a minus b whole square, it is equals to a plus b whole square minus 4ab. A plus b whole square is 7 square, that is 49 minus 4ab. So 2 root ab square is 4 root 3. 16 into 3. 16 into 3 is 48. So basically it is equals to 1. So option number third is correct. Now the question number third. X equals to 2 plus root 3 and xy equals to 1. Then x upon root 2 plus root x, y upon root 2 minus x equals to 2 plus root 3. So root x is equals to root 3 plus 1 upon root 2. Root 3 plus 1 is 3 plus 1 plus 2 root 3. So after dividing by 2, we get 2 plus root 3. Similarly, 1 by x is equals to y. So y is equals to 1 upon 2 minus root 3. That is equals to 1 upon, after rationalizing, it will become 2 plus root 3. Now put these values in this expression, we get 2 plus root 3 upon root 2 plus root x. Root x is root 3 plus 1 upon root 2. Similarly, we can calculate root y, that is equals to root 3 minus 1 upon root 2. And y is 2 plus root 3. So it is equals to 2 minus root 3. So 2 minus root 3 upon root 2 or root y. Root 3 minus 1 upon root 2. Now simplify it. root 2 LCM लेने के बाद root 2 कॉमन हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन में से, तो 2 plus root 3 upon 2 plus root 3 plus 1. Next is 2 minus root 3 upon, that is equals to root 2. 2 minus root 3 minus 1. It is equals to root 2. 2 plus root 3 upon 3 plus root 3. 2 minus root 3 और ये हो जाएगा 3 minus root 3. Minus minus plus 2 plus 1 is 3. We can take common root 3 as root 3 as common. Root 2 upon root 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 plus root 3 upon root 3 plus 1 and यहाँ पे हो जाएगा ये 2 minus root 3 or root 3 minus 1. After taking LCM, root 2 upon root 3, root 3 plus 1, root 3 minus 1 become 2, and root 3 plus 1, 2 plus root 3 and root 3 minus 1 will give us 3 minus 1 and minus root 3 plus root 3, that is root 3, and it will become 2 minus 3, that is 3 and minus 2, that is equals to minus 2. और ये बन जाएगा 2 minus 3 और 2 root 3 minus root 3, that is root 3.
2 minus 1, 3 minus 1, ये plus 1, ये minus 1 cancel, root 3 means 2 root 3. So ये 2 और ये root 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा root 2. So option number 3rd is correct. Next question is find the remainder when it is divided by x plus 1. So let's say polynomial px is equals to x cube minus x square minus 2, and remainder is equals to p of minus 1. Minus 1 cube minus 1 square minus 2, that is minus 1 or minus 1 minus 2, that is equals to minus 4. Next question is question number 5. Alpha and beta are the zeros of the polynomial. From here we can get that sum of zeros, that is alpha plus beta, it is equals to minus 2, and product of zeros, that is plus 3. Minus b by a or c by a. Now concentrate on this alpha square upon beta plus beta square upon alpha. After taking LCM, we have denominator as alpha and beta, alpha into alpha square, that is alpha cube, beta into beta square, that is beta cube. Alpha cube plus beta cube is equals to alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta upon alpha beta. Now put these values, we have calculated already, minus 2 minus 3 alpha beta is 3 and minus 2 upon 3. So minus 2 cube is minus 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 18 अपॉन 3, सो 10 अपॉन 3. ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल qx, then the remainder is rx. So remainder is rx. Let's say px is equals to qx plus, let's say quotient is qx plus remainder is rx. Now put these values, px 2x power 4 plus x cube minus 5x square minus x plus 1 is equals to qx. qx के अपने पास में फैक्टर है x minus 1 x plus 1, x minus 1 x plus 1, and qx we did not need this, and rx is ax square plus bx plus c. Now put x equals to 0, it will become 0, and 4 0 0 0 0 0, 1 equals to c. c की वैल्यू तो अपने पास में आ गई 1. अब एक बार अपन रख देंगे इसमें x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे आएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 6, सो माइनस 3 और माइनस 2, 2 3 4 और माइनस 6 मीन्स माइनस 2, ये फिर से 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी, सी इज़ 1, सो a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 3. और अब एक बार लास्ट में अपन x की वैल्यू माइनस 1 रख देंगे, तो माइनस 1 पे देखो ये बन जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस 5, ये प्लस 1 और प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस 1 पे a माइनस b और प्लस c का वैल्यू फिर से 1, तो ये देखो 1 1 कैंसिल और माइनस 5 और माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस b प्लस 1, तो यहाँ से a माइनस b की वैल्यू भी कितनी होगी -3. इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू नहीं सॉरी b की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो b इक्वल्स टू 0 और b 0 हो गया तो a की वैल्यू कितनी होगी -3. a -3 b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 1, सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10. Next question is 7th number. If the lines given by this 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are intersecting. So simply a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. a1 upon a2 means 3 upon 2 not equals to b1 upon b2 means 2k upon 5. So k not equals to 15 by 4. Other than 15 by 4, if we get any values, it will give the unique solution or lines are intersecting. So 15 by 4 cannot be the possible value of k. Question number 8 is,
if the value of x which satisfies the linear equations, so first linear equation is this and second is this, then we have to calculate this a and b. We have to calculate the x, so we have to eliminate the y. So multiply this equation by √3 and this equation by √2 and add both equation. √3 से ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा √6y. कोफिशिएंट सेम करना था अपने को y का, तो उसकी वजह से ऐड कर दिया. ये हो जाएगा √10x प्लस 3y, सॉरी √6y, और ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी इस साइड में तो हो जाएगा 5, √6y कैंसिल, तो ये हो जाएगा √10 प्लस 3. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/√10 माइनस 3, और अपन इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा √10 प्लस 3, सॉरी, तो 5 इंटू √10 माइनस 3 हो जाएगा. तो ये a तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा b. तो a की वैल्यू तो है 5 और b की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा a माइनस b की वैल्यू 2. आंसर ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस. इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी अपने पास में, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. बेसिकली दिस लाइन इज इक्वल्स टू, एंड y इक्वल्स टू 0 इज द x एक्सिस. x माइनस वाई, अगर y पुट किया अपन ने 0 तो x की वैल्यू -1, और x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1. तो ये लाइन कुछ इस तरह से होगी, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 और 1. 3x प्लस 2y, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 6, यानी यहाँ कहीं पे लाइन होगी, और y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आएगी 4, यानी कुछ इस तरह से आएगा. ये 4 है, ये पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है. इससे अपन एरिया बाउंडेड बाई दीज 3 लाइन्स. तो यहाँ पे अपन y की वैल्यू रख दो x प्लस 1 इसमें रखोगे 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 -12 इक्वल्स टू 0. 3x 2x यानी 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3. तो ये लेंथ कितनी हो गई, 3 हो जाएगी, और ये लेंथ हो गई 5, 3 यानी 1/2 बेस दैट इज 5 एंड हाइट इज 3, 15/2 दैट इज 7.5. 7.5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा. इक्वेशन तो अपने को सिंपल इसके स्क्वायर ओपन करने हैं. x² माइनस 4 यानी x⁴ प्लस 1 माइनस 2x², और ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² इक्वल्स टू 2. तो ये 2 1 1 कैंसिल, और ये 2x x⁴ है, सॉरी माइनस 2x² माइनस 2x², x⁴ 2 टाइम इक्वल्स टू 0, यानी x⁴ इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0. सो ओनली वन रियल रूट, वी गेट ओनली वन रियल रूट. Next question, question number 11. If the quadratic equation have equal roots, then we can clearly see here that x equals to 1 is satisfying this equation. X equals to 1, this 1, and this is also equals to 1. So L minus m, m minus n, and so 0 equals to 0. If one root is 1, then other root is also equals to 1 because both roots are equal. So product of root is basically equals to 1. So C by A means n minus L upon L minus m equals to 1. Sorry, n minus L equals to L minus m. m इधर आ जाएगा तो n plus m equals to 2L. So option number 2 is correct. If the sum of the square of 3 consecutive even natural number is 200, then find the product of numbers. Conjugative even number, let's say a number is x, x plus 2 and x plus 4. Sum is sum of squares, so x square plus square is equals to 200. So x square means 3x square. Here we get 4x and here 8x. 8 or 4, 12x. 12x plus 4 and 16. 16 और 4, 20. और इधर से आ जाएगा 180 इक्वल्स टू 0. 3 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा. एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 60, 0.
अब इसके फैक्टर कर देते हैं अपन, 10 और 6 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो होगी -10 और एक हो जाएगी 6। सो x इक्वल्स टू 6 इज द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज 8 एंड थर्ड नंबर इज 10। सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 6 इंटू 8 48, 48 इंटू 10 यानी 480, ऑप्शन नंबर सेकेंड। An industry produces a certain number of article in a day. So let's say number of articles produces is x. Number of article produces is x, and it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 5 more than the thrice of the number of article. So thrice and 5 more. This is the cost of each article. If the total cost of the production, so total cost is production cost into number of article, that is equals to 182. So after multiplying this we get 3x square plus 5x minus 182 equals to 0. So after using this Sridhar Acharya we get x equals to -5 plus minus root over 5 square, that is 25 plus minus plus हो जाएगा 4 into 3 into 182 upon में 6. So we have to multiply the 182 into 12. So 182 into 12, 2 into 2 4, 16 and 3, 0 2 8 1 4 8 1 and 2, 2184. And now we have to add the 25 also here. So 2 5 9 0 3 sorry 2 or 2. It is the square of 47. So it will become the square of 47 minus 5 plus minus 47 upon 6. तो यहाँ से एक तो आएगा प्लस का 42/6 और एक आएगा माइनस का, जो कि कंसिडर नहीं करेंगे अपन। 42/6 ये बन जाएगा 7. So number of article produces is equals to 7. So cost of each article is 7 into 3, that is 21 plus 5, that is 26. Next question is alpha and beta are the roots of this equation, then find the equation whose roots are. So basically equation whose roots are given, it is equals to x square plus sum of root into x plus product of root. So here from here we get alpha plus beta equals to -5/3 and alpha into beta is -2/3. The sum of root s equals to alpha plus 1/beta and beta plus 1/alpha. So it will give alpha plus beta, that is -5/3, and from here alpha 1/alpha 1/beta, it is alpha plus beta upon alpha beta. -5/3 alpha plus beta -5/3 and alpha -2/3, so it is equals to 5/2. So 10 minus 10 plus 15, so 15 minus 10 5, so 5/6. तो सम तो हो जाएगा 5/6 और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा। एक तो हो जाएगा अल्फा बीटा और दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा 1, बीटा इंटू 1/बीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में। अल्फा बीटा -2/3 और ये हो जाएगा 2 और 1/अल्फा बीटा यानी -3/2, तो ये आ गया 1/2 -2/3 और प्लस 1/2, -4 प्लस 3 यानी -1/6। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस सम 5/6 into x product -1/6 equals to 0. So equation will become x square minus 6x square minus 5x minus 1 equals to 0. ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है AP क्या? लेट Sn be the sum of first n terms and arithmetic progression। Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d, वो वाला लगाएंगे, इसमें पुट कर दो वैल्यू S3n, so 3n/2 2a plus 3n minus 1 into d is equals to 3 into S2n n/2 and 2a plus n minus 1 2n minus 1 into d। n/2 यहाँ से कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, इधर तो है 2a plus
3n माइनस वन इंटू डी, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। देखो ये तो है 2a और इधर है 4a, तो इधर तो बच जाएगा 2a। इधर है 3n माइनस वन इंटू डी, और इधर कितना है अपने पास में 4n माइनस टू, तो 4n माइनस टू यानी हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस एन की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी 2a का वैल्यू मैं ऐसे रख सकता हूँ माइनस n माइनस वन इंटू टी, 4n माइनस टू 3n। ठीक है, S4n अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ये S4n आएगा 4n बाई टू 2a की वैल्यू ये रही माइनस n माइनस वन इंटू डी और 4n माइनस वन इंटू डी अपॉन 2n, यानी 2n बाई टू और माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये 2a की जगह रख दिया अपन ने, और फिर आएगा 2n माइनस वन इंटू डी, तो डी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, n बाई टू 2 से 2, तो ये एक तो बचेगा ऊपर 2, 4n माइनस वन और माइनस n माइनस वन, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3n और डिनोमिनेटर में बन जाएगा अपने पास में n, तो 3n और n ये अलग कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, एंड द सम ऑफ इट्स 25 टर्म्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स, सो S25 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 15 टर्म्स, मीन्स 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, सो S40 माइनस S25, ये बोल रहा है 15 टर्म्स को 40 में से 25 टर्म्स का माइनस कर देंगे तो 15 टर्म्स का सम आ जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो 2 टाइम S25 इक्वल्स टू S40, S25 का वैल्यू रख देंगे अपन 25 अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 24 इंटू डी 25 माइनस वन, और ये आ जाएगा 40 अपॉन 2 और n माइन 2a 2 इंटू 3 प्लस n यानी 39 इंटू में डी, तो कुछ कैंसिल हो रही चीज़ें, 2 से 2 कैंसिल, एक हो जाएगा ये 2 से ये 20 और ये 5 से 4 टाइम और ये 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 5 6 प्लस 24 डी और इधर आ जाएगा 4 6 प्लस 39 डी, तो ये तो है 6 5 30 और उधर है 24, तो 30 प्लस 24 इंटू 5 यानी 120 डी, और ये हो जाएगा 24 39 इंटू 4 हो जाएगा 160 माइनस 40 इंटू 4 होता है 160 और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 156 डी हो जाएगा, 24 यानी 6 इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 36 डी, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6, डी का वैल्यू 1/6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लेट S1 बी दी सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, सो S1 का मतलब कितना हो गया S2n, लेट S2 बी दी सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4n टर्म्स, सो S2 इज इक्वल्स टू S4n, द सेम अर्थमेटिक, इफ S2 माइनस S1 यानी S4n माइनस S2n इज 1000, then the sum of its first 6n terms, कैलकुलेट कर लेते हैं 4n बाई 2 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा माइनस 2n बाई 2 और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में इज इक्वल्स टू 1000, यहाँ से 2 और 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 4a, सॉरी 2 बाहर ले लो, एक बार ऐसे ही लिख देते हैं 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू में डी, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल्स टू 1000, 2 से ये कुछ क्या ही कैंसिल करेंगे इसको, तो चलो 2a 4a और माइनस 2a यानी कितना बच जाएगा 2a बच जाएगा, ये n तो इधर है ही, ये बच जाएगा अपने पास में 2a और यहाँ पे है 8n माइनस 2 और ये है 2n माइनस 1 यानी 6n माइनस 1 हो जाएगा, 6n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1000,
अपने को 6 एन टर्म का सम चाहिए, तो ये यहाँ पे 6/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 3000। सम ऑफ सिक्स एन टर्म्स दैट इज 300। 300 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये तो जरूरी नहीं है कभी हो। टू पैरेलल लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये जरूरी, ये तो गलत बात है। टू परपेंडिकुलर लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। तो परपेंडिकुलर लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इन द फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू पी या पी क्यू, एक्स वाई ओ यानी ये वाला एंगल, और पी क्यू ओ यानी ये वाला एंगल। तो अपने को ये वाला एंगल बताना। तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना रहा हूँ। ये 80 है तो ये भी 80, ये 60 है तो ये भी 60, यानी ये कितना हो जाएगा 80 और 60 140। 60 80 ओवरऑल एंगल हो जाएगा 140। ये वाला एंगल चाहिए तो 360 माइनस 140 0 2 2 220। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू क्यू एम, ये और ये लाइन पैरेलल है, और ए एम पैरेलल टू क्यू आर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। एंगल बी ए सी ये कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और एंगल ए सी बी ये कितना है 50 डिग्री है। ये 50 डिग्री अपने को पता है, ये पैरेलल है तो ये भी 60 हो जाएगा। चलो ठीक है। और कौन सा क्या कर सकता है? ये 50 है, ये 50 है तो ये 50 होगा सर, ये 50 हो जाएगा। और ये वाला अल्टरनेट एंगल बन रहा है तो ये 60 50 60, तो ये वाला एंगल क्या है 60 है। 50 60 तो ये कितना बन जाएगा 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। कौन सा एंगल पूछा है? एक्स की वैल्यू पूछी है, क्यू आर एच, ये वाला एंगल एक्स है, ये 70 है। और कौन सा एंगल पता कर सकते हैं अपन यहाँ से? ये लाइन्स पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है, तो ये कितना हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इन दोनों के सम के इक्वल है ना, 60 60 120, तो ये एंगल हो जाएगा 130। यानी कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए डी इक्वल्स टू बी डी एंड बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी। So let's say this angle is theta and this is also equals to theta, and theta so it is equals to exterior angle 2 theta, so x is also equals to 2 theta. So here it is 180 minus 4 theta, so sum is theta plus 180 minus 4 theta. Basically this is 60 degree, so 60 degree plus equals to 180 degree. 180 cancel, so 3 theta equals to 60 degree and theta equals to 20 degree. So x equals to 2 into 20, so it is equals to 40 degree. So option number 4th is correct. Now next question is 22nd. In the given figure given below, equilateral triangle surmount circle square, find the angle represented by theta. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ये 60 हो गया तो ये भी 60, ये 60 और ये 60, तो ये 90 150, ये और ये साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। 90 प्लस 60 यानी 150 हो गया ये पूरा एंगल, और बचा कितना एंगल 30 डिग्री। दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ए मैन ट्रेवल्स ऑन ए बाइसिकल 10 किलोमीटर ईस्ट, तो 10 किलोमीटर ईस्ट यानी ये हो गया 10 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए टू बी। देन ही साइकिल 15 किलोमीटर साउथ, तो 15 किलोमीटर साउथ, सो 15 किलोमीटर साउथ एंड रीच पॉइंट सी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ए सी की लेंथ आ जाएगी बाई पाइथागोरस थ्योरम।
सो 10 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 4 और ये हो जाएगा 25 इंटू 9 रूट। तो 5 तो कॉमन आ गया बाहर और 5 और 9 4 और 9 13 तो 5 रूट 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड AOD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा की वैल्यू ये 45 हो जाएगा और ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये 30 और 45 तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो 30 और 45 यानी 75। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। सो ये 8 है, ये भी 8 है भाई। हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया वेरिया को कंपेयर करना है तो पहले अपन साइड की बात करते हैं। तो ये x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा। ये अपना एंगल 60 डिग्री है बिकॉज ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 8/x। tan 60 डिग्री इज √3, 8/x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3। तो ट्राइंगल की साइड आ जाएगी अपने पास में 8 + 2 × 8/√3। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 2/√3। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी ए। और अपने को पूछा है बाई हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 A² इसका स्क्वायर यानी 8 × 8 और √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 4 + 4√3 और अपॉन में यहाँ पे 3 और माइनस अपन क्या कर देते हैं साइड 8 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर तो कॉमन ले लो। यहाँ से ये √3 हो जाएगा, कितना बचेगा √3 4 तो 7 + 4√3 अपॉन 4√3 और -1 ये बनेगा 8 स्क्वायर और 7 + 4√3 तो 7/4√3। 4√3 में डिवाइड करेंगे प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये कैंसिल। 8 स्क्वायर 64 ये हो जाएगा 16 × 7/√3। 16 × 7 होता है 112/√3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, आई एम नीलेश प्लानिया, मैथ फैकल्टी सेल्स सीकर से। 17 नवंबर को जो टेक्नो का एग्जाम हुआ, आज हम उसके मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो मैथ का फर्स्ट है, लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इरिगेशन, एग्रीकल्चर लैंड, क्रॉप इरिगेशन एंड सीड्स और एग्रीकल्चर लैंड। सीड्स और एग्रीकल्चर लैंड तो सबसे पहले होगा ही हमारे पास। सबसे पहले है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड होगा, उसके बाद हम लोग उसमें सीड के बाद में हम लोग इरिगेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट क्रॉप इरिगेशन। तो ऑप्शन बनेगा BDAC। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। सबसे पहले होगा बाइट, बाइट के बाद में होगा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट। तो ये बन जाएगा AEBDC। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। In a row, A is the 15th from left and B is 7th from right. There are the 3 persons between them and C is to the immediate left of A. C is immediate left of A. What is the portion of the C from the right? Right से बताना portion हमें। तो ये बन जाएगा 7 और ये 3, 7 और 3 10, 10 और ये 11 और ये 12। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसका दूसरा पोर्शन हम लोग कंडीशन कंसिडर कर सकते थे ओवरलैप वाली, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है और आंसर में भी नहीं है। फिर भी देख लो एक बार, ए इधर से 15th नंबर पे है और ये यहाँ से 1 2 3, ये यहाँ कौन बैठेगा, बी जो इधर से 7th नंबर है, 7 6th 5th 4th और ये 3 नंबर की सीट, और सी यहाँ से बैठेगा 3। तो ये हो गए हमारे पास और 1 4। तो 4 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर तो इसमें 12 ही होगा। नेक्स्ट, इन द क्लास ऑफ द 48 स्टूडेंट अनुज रैंक
19th from the top and Jeevan ranked 12th from the bottom. How many student between them? तो 19 plus 12 कितना हो गया? 11 2 3 31 और टोटल कितने हैं? 48. दो रिमेनिंग स्टूडेंट बीच में होंगे तो 9 plus 8 कितना हो गए? 17. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. 8 boys P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table. टोटल स्टूडेंट है 8. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. P and Q are sitting opposite to each other. मतलब P and Q are sitting opposite. हम कहीं भी एग्जाम्पशन ले सकते हैं सर्कुलर टेबल में. तो S sits second to the right of P. P के सेकंड राइट में S sits second to the right of P. फर्स्ट और सेकंड S. And V sits second right of Q. Q के सेकंड राइट फर्स्ट और सेकंड V. T and W are sitting opposite to each other. तो एक पोर्शन ये बन रही है, एक पोर्शन ये. तो एक बार देख लेते हैं. T and W are opposite to each other. R sits between P and V. R sits between P and V. मतलब T यहाँ है तो W यहाँ होगा और W यहाँ है तो T यहाँ होगा. P and V. How many boys sits between U and V? मतलब यहाँ से सबसे पहले कौन पर्सन रह गया हमारे पास? P है, Q आई गया, R है, S है, T है, U, V और W आएगी. When count from the right of U. U के राइट में काउंट करें तो 1 और 2. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर रिलेटेड एज द फर्स्ट वे. तो हमारे पास ये दिया हुआ है POSTED. इसको कह रहे हैं TPQEFU. यही तो हमारे पास इसमें लेटर दिया हुआ है. तो ये आ जाएगा STOPPQ. तो ये आ जाएगा DEEFTU. तो ये आ जाएगा COUNTS. तो C का हो जाएगा V, O का हो जाएगा P, C का हो जाएगा D, S का T, T का U, N का O. मतलब +1 ही था ना. तो ये बन जाएगा VPDTUO. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. सेम क्वेश्चन है. 27 का रिलेशन है 702 से. तो 27 इंटू 26 इक्वल्स टू 702. तो 12 इंटू 11 इक्वल्स टू 132. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. दिस ईयर वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे. मतलब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग. If Diwali is on 31st October, Diwali is on 31st October, then on which day will we celebrate Diwali? दिवाली कब सेलिब्रेट करेंगे यही पूछा है. तो 15 अगस्त है तो 16 डे अगस्त का रिमेनिंग है. अगस्त के बाद सितंबर है, सितंबर के बाद में अक्टूबर का लास्ट डेट तक है. तो ले लेते पूरा ही 7. तो रिमेनिंग कितना रहा? 2 रिमेनिंग रहा, 2 रिमेनिंग रहा, 3 3 2 5 5 2 7 रिमेनिंग रहा 0 0 मतलब नो चेंज. तो जो संडे है संडे में ही दिवाली हो जाएगी. ऑप्शन नंबर 2 is a right answer. Study the given matrix carefully and select the number from among the given option that can replace the question mark in it. तो हमारे पास ये पता है कि 9 into 5 45 minus 2. यही हमने 45 minus 2 तो ये हो जाएंगे 28 minus 2. तो ये हो जाएंगे 63 minus 2 61. ऑप्शन नंबर 2 is a right answer. यहां से हमें मिल रहा है इन दोनों का सम देखते हैं. तो 22 प्लस 18 ये नंबर बना हमारे पास 30 40 और ये है 32. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 का डबल कितना हो गया? 8. तो 32. अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 32 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 6 ये 5 56 माइनस हमें इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 to 8 8 का माइनस 16 तो ये आ जाएगा 40. मतलब इन दोनों का सम करके 7 और 2 कितना हो जाएगा? 12. 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12. अब इसमें से माइनस करना है जो डिफरेंस है उनका डबल. तो 7 माइनस 2 7 माइनस 5 2 का डबल 4 डबल किया तो 8 आंसर आएगा. ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर. इन द question given below, first there is a statement followed by the assumption. You have to decide which of the assumption underlying the statement is given after
considering the given statement and the assumption given below it is, despite the end of the monsoon there was not enough rainfall. मतलब कहना चाह रहे हैं कि मानसून समाप्त होने के बाद भी वर्ष मतलब सफिशिएंट बारिश नहीं हुई. अब इसका जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन का मतलब है हम लोग कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. द अराइवल ऑफ द मानसून इज द रीजन ऑफ द रेन, और यही हमारा ऑब्जेक्शन मानना, तभी मानसून समाप्त होने के बाद का है इसने, मतलब उसका रीजन है. इट डज नॉट रेन इन द अदर सीजन्स, ये हम लोगों के बारे में कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का. मैनी स्टूडेंट हैड अडॉप्ट ऑनलाइन मोड ऑफ द एग्जामिनेशन. तो मतलब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो एग्जाम ले रहे हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है. उसके पीछे रीजन है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द पार्ट कंट्री कैन एबल टू टेक द टेस्ट ऑन द कंप्यूटर, मतलब पार्टिसिपेशन है वो बच्चे सब दे सके. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट. ऑनलाइन मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हेल्प इन द रिक्रूटिंग मोर द क्वालिफाइड पीपल्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें ज्यादा एलिजिबल पर्सन्स रहते हैं, चीटिंग का कम चांसेस वगैरह रहते हैं. तो बोथ आर राइट. Assumption first and second both are right. Next question. What is the degree of the angle between the hour hand and the minute hand at the clock 2:30? तो इसके लिए फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर. मिनट एंड आवर का वैल्यू रखो. 11/2 मिनट है, 30 माइनस 30 इंटू आवर के वैल्यू है 2. ये कितने होंगे 15 इंटू 11 561 माइनस ये कितना हो गया 60, मतलब 105 डिग्री. 105 degree. Option number second is the right answer. Read the given statement and the conclusion carefully, assuming that the information given in the statement are true, even they seems to be the variance from the commonly known facts. Decide which of the following conclusion logically follows from the given statement. No butter is jam. No butter is jam. Banana is butter. जो बनाना है वो बटर के अंदर आएगा. बनाना इज नॉट जैम, तो बनाना अंदर है तो जैम तो नहीं होगा, तो फर्स्ट इज बनाना मे और मे नॉट, तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, अज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट आर ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू. वही सैलोलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन रह रहा है हमारे पास यहाँ. तो हम लोग सम बॉल्स आर स्पून, सम बॉल्स आर स्पून, ऑल स्टोन्स आर बॉल, all stones are ball. ठीक है, और ये है स्पून. नो बॉल इज पैडल, नो बॉल इज पैडल. फर्स्ट सम बॉल्स आर स्टोन, सम बॉल्स आर स्टोन, सम बॉल्स आर स्टोन, फर्स्ट इज राइट. नो स्पून इज स्टोन, नो स्पून इज स्टोन, स्पून और स्टोन में कोई रिलेशन नहीं है. नो स्टोन इज पैडल, कोई भी स्टोन है वो पैडल नहीं, स्टोन पैडल नहीं है, तो थर्ड राइट. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट. ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट. ओके, थैंक यू. Hello, it's me Rakesh Kumar for the Techno class 10th physics section solution, and here is the question number first, that is the gravitational force between two bodies is F. If the distance is halved and mass of each body is doubled, then the new gravitational force will be. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें गिवन है कि फोर्स है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड द न्यू फोर्स F डैश विल बी Gm1 डैश m2 डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर. Here is the mass of each body is doubled. It means G2m into 2m upon the radius is, the distance between them is halved. It means r by 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ. That is, it will be the 16 gm square upon r square. This is the this was given g m square. It means if the m1 and m2 is equal, then in this case r square, so this is the f and here is 16f. The right answer is 16f. Next question.
The escape velocity from the earth is 11.2 km per second. The mass of another planet is 100 times of mass of earth. Its radius is 4 times of radius of earth. Escape velocity for earth is equal to root 2gm upon r, and for the new condition the escape velocity v dash will be 2g. m is 100 times, it means 100 m, and the radius is 4 times of earth, 4r, and 4 this will be 25, and 25 का जो रूट आएगा वो आ जाएगा 5 root 2gm upon r. This value is equal to this, and this was given 11.2 km per second. Then 5 into 11.2 km per second will be 56 km per second. The option 1 will be right. And the next question is, a point object O is placed midway between on the common axis of two concave mirror of the equal focal length. दोनों जो मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर हैं, दोनों के फोकल लेंथ f है, एंड इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन रही है, द सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स इज फोकल लेंथ फॉर ईच मिरर इज f. यहाँ जो गिवन कंडीशन है, अगर ये हम कह रहे हैं कि जो गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम f पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो f से रेज जाएंगी कहाँ, जब रिफ्लेक्शन होगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, एंड यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगे वो इससे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जो आते हैं वो वापस कहाँ आ जाएंगी, फोकस पे. तो इस तरह से दोनों जो मिरर हैं वो अपनी इमेज कहाँ बनाएंगे, फोकस पे बनाएंगे. तो अगर हम फोकस पे रख रहे हैं इसका मतलब ये डिस्टेंस f है और ये वाली भी कितनी है, f है. तो टोटल डिस्टेंस, द सेपरेशन डिस्टेंस पूछिए आपसे दोनों मिरर की, तो वो क्या हो जाएगी, f और f 2f. अगर अदर कंडीशंस की बात करें तो एक 2f और 2f जो है वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है. तो हमारे लिए जो राइट आंसर होगा अभी वो कितना हो जाएगा, 2f. नेक्स्ट वन इज मैच द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ हमें फाइंड करना है कि ये कंडीशंस कहाँ मैच हो रही हैं. तो फर्स्ट कंडीशन जो है m-2, इसका मतलब है माइनस, नेगेटिव है. m मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. नेगेटिव जो होता है इसका मतलब है कि वो इमेज रियल बन रही है. तो रियल इमेज जो बनाता है वो कौन बनाता है, q. इट मीन्स फर्स्ट कैन बी पॉसिबल फॉर q. यहाँ साथ में जो सेकंड है इसके साथ q जो है वो बड़ी बननी चाहिए. तो बड़ी जो इमेज है वो कौन बना सकता है, केवल कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स कभी बड़ी नहीं बना सकता. इसलिए हमारे लिए क्या आ जाएगा, जो रियल इमेज है और कॉनकेव मिरर है दोनों मैच हो रहे हैं, किसके लिए, फर्स्ट के लिए. सेकंड में b में जो आएगा -1/2 है, इसका मतलब रियल होनी चाहिए. तो ये रियल होनी चाहिए. साथ में -1/2 है, इसका मतलब छोटी होनी चाहिए. कॉन्वेक्स कभी रियल नहीं बना सकता, इसका मतलब इसमें कॉन्वेक्स नहीं आ सकता. रियल इमेज हमें चाहिए, तो रियल कौन बनाएगा, कॉनकेव बनाएगा. तो इट मीन्स द अदर आंसर ऑल्सो बी q एंड r, एंड m इज +2. +2 का मतलब है इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल. तो फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए क्या आ जाएगा, s. और साथ में वर्चुअल जो है वो बना सकता है कौन, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी. बट कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनाता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है. इसका मतलब है यहाँ जो आ रहा है वो +2 है. इसका मतलब ये बड़ी इमेज होनी चाहिए. बड़ी कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच. तो इसका मतलब इसमें भी कॉन्वेक्स आएगा. तो राइट आंसर इसमें q एंड s हो जाएगा. और जो लास्ट वन है +1/2, इसका मतलब इमेज कैसी होनी चाहिए, प्लस का मतलब पॉजिटिव, वर्चुअल. तो वर्चुअल में s आना चाहिए, आ गया यहाँ पर. साथ में 1/2, तो 1/2 मतलब हाफ आ रहा है. तो यहाँ अगर कॉनकेव लेते तो वो वर्चुअल नहीं होती, सीधी यहाँ हमारे लिए कौन सा आ जाएगा, जो छोटी भी बनाता है. तो ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो p और s के साथ हो रहा है. तो इसका मतलब हमारे लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा इसमें. तो ये कॉन्वेक्स में p और s, ये जो सारे केसेज हैं वो मैच हो रहे हैं इस कंडीशन के साथ फुली. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ्स एज शोन इन द फिगर. इसका मतलब हमने ऐसे काटा है.
यदि हम लेंस को इस तरह काटते हैं तो पावर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जब हमने इस तरह काटा है तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ईच पीस की डबल हो जाएगी। तो ये हमारे लिए राइट आंसर होगा कौन सा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड एयर टू वाटर एज शोन इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिगर थर्ड के अकॉर्डिंग रेफ्रैक्शन एंगल हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें चाहिए, देखो इसके लिए थर्ड के लिए ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, इसमें हमारे लिए साइन आई अपॉन साइन आर हमारे लिए क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास फॉर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हमें फाइंड करना है। यहाँ गिवन जो है वो यहाँ दो केसेस दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें म्यू जी निकाल सकते हैं हम, म्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर विद रेस्पेक्ट टू एयर। देख लेते हैं हम, साइन आई यानी साइन 60 अपॉन एयर के लिए, और रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा ग्लास में कितना है, साइन 35 डिग्री, एंड म्यू डब्ल्यू एयर जो हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा, साइन आई हमारा है 60 अपॉन वाटर के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 45। अगर हम दोनों से हम क्या निकालें, म्यू जी डब्ल्यू, तो यहाँ इस केस से जो हमारा साइन आई आ रहा है वो कितना आ रहा है 45, तो साइन आई अपॉन साइन आर, आई कितना है 45, एंड आर वी हैव टू फाइंड दिस वन, एंड वी म्यू जी डब्ल्यू इससे निकालें हम तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू हम लिख सकते हैं, और म्यू जी और म्यू डब्ल्यू जो हमारे लिए वैल्यू आ रही हैं वो आ रही हैं साइन जी के लिए साइन 60 अपॉन साइन 45, एंड डब्ल्यू आप नीचे डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा, दैट विल बी साइन 45 अपॉन साइन 60। सॉरी, यहाँ जो है ये 35 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ आएगा क्या 35, एंड हियर इज साइन 45 अपॉन साइन 60। नाउ साइन 60 कैंसिल हो जाएंगे, साइन 45 साइन 35 जब कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ 45 है, इसका मतलब R कितना होना चाहिए 35। दिस इज द राइट आंसर 35 डिग्री। नेक्स्ट वन इज which of these colors is least scattered by dust, fog and smoke। लीस्ट स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट किसी पार्टिकल्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसमें होता है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो रेले जो स्कैटरिंग है वो कहता है कि स्कैटरिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर 4। देन यहाँ जो लेमडा मैक्सिमम होता है वो होता है रेड के लिए, इसका मतलब स्कैटरिंग जो मिनिमम होगी वो किसके लिए हो जाएगी, रेड के लिए। नेक्स्ट वन इज ए मैन विद हाइपरमेट्रोपिया कांट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज देन ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो आप 40 सेंटीमीटर से पास में वो नहीं देख सकता है, यानी हमें रियल में एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए, इसको कहाँ तक का दिख रहा है 40 तक का, उसके पास में वो नहीं देख पा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ जो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी। द न्यू फोकल लेंथ या न्यू नियर पॉइंट दैट इज एट 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 25 अपॉन 40 माइनस 25, दैट विल बी 1000 अपॉन 15, this is, and this one will be 3 times divided by 40 into 25, and ये 15 हो जाएगा 3, 5, 200 upon 3. This is the new focal length and we have to find the power. तो P is equal to हो जाएगा 1 upon F, और सेंटीमीटर में हमें दे रखा है, इसका मतलब 100 अपॉन F, तो 200 और इंटू 3, दैट विल बी 3/2, इट मीन्स 1.5 D, and this one will be the right answer. Next one is
work done against gravity in moving 100 kg mass at height 100 centimeter in just 2 seconds. तो 2 सेकंड का यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमने जो वर्क किया है वो हमें फाइंड करना है. दैट विल बी mgh. m is given as 100 kg, g is given 9.8. we have to use 9.8 and height is in centimeter but it is in 1 meter. That will be calculated and 980 will be the right answer. And next one is, which of the following graph is correct for change in kinetic energy, potential energy with height of a particle from ground? So we know that the height, when height increases the potential energy also increases. तो यहाँ जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हाइट के साथ एनर्जी इंक्रीज के हमारे पास दो, जो पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीजेज हैं वो दो हैं हमारे पास. तो इसमें से जो लीनियरली इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी में, वैसे ही लीनियरली डिक्रीज हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व्ड. तो इट मीन्स द राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन. Hello everyone. Today we discuss about CLC Technic 2025 Class 10 Chemistry paper. Question number 51 is select the oxidizing agent for the following reaction. पूछा है बेटा निम्न अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकारक की पहचान कीजिए. अभिक्रिया इसमें दे रखी है H2S plus I2 convert into 2HI plus S और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है. देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन या ऐसी कोई रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें किसी एक सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. तो फिलहाल हमको इसमें सिर्फ इतना सर्च करना है कि इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन किसका हुआ है. जो हमको रिएक्शन यहाँ पे गिवन है H2S प्लस I2 कन्वर्ट इंटू 2HI प्लस S. इनके ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम चेक करते हैं तो हाइड्रोजन का +1, सल्फर का -2, आयोडीन 0, HI में H+1, आयोडीन -1 एंड सल्फर इज 0. Sulfur -2 to 0 mean oxidation and 0 to -1 आयोडीन गया तो ये रिडक्शन. और अपन से पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे होंगे जिनका रिडक्शन हुआ है. तो रिडक्शन किसका हुआ है यहाँ पे, आयोडीन का. तो आंसर बनेगा अपना I2 फर्स्ट ऑप्शन. 52 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. निम्न में से कौन सी एक विस्थापन अभिक्रिया है. अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर ए हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस इन लो रिएक्टिव नॉन मेटल ऑल्सो टू देयर सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिएक्शन नंबर 1 आपको गिवन है यहाँ पे MgCO3 ब्रेक डाउन इंटू MgO प्लस CO2. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. 2Na प्लस वाटर कन्वर्ट इंटू 2NaOH प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे सोडियम ने वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो सकती है. 2H2 में SO2 बराबर 2H2 कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है. लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है. अपन से पूछा गया बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, तो इसका आंसर आएगा अपना सेकेंड. ब्राइन क्या होता है. ब्राइन बोलते हैं बेटा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं ब्राइन. NaCl की तरह थर्ड ऑप्शन के अंदर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और ऑफ ए बेस. एसिड और बेस के एक्वा सॉल्यूशन के लिए क्या चीज़ सही है, थोड़ा ध्यान से देखना. बेसिकली अपन बोलते हैं कि किसी pH स्केल के अंदर जो pH के डेटा होते हैं फ्रॉम 0 to 14 वेरी करते हैं. और पॉइंट नंबर 7 को अपन न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं. और इतना सा डेटा है कि 7 to 0 की तरफ यदि अपन मूव करें तो pH की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो pH की वैल्यू यदि डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे. और यदि हम बात करें 7 to 14 की 7 to 14 pH की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो pH की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ इसके बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है. तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन सोचें कि सब हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं, pH जितना डंप कम होगा उतनी ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. तो ये तो रॉन्ग हो गया. हायर द pH वीकर द एसिड, बिल्कुल ठीक है. pH की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है. लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, नहीं, pH जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस, ये भी नहीं बनेगा. लोअर द pH वीकर द बेस, बिल्कुल ठीक है. तो सेकेंड एंड फोर जो कि करेक्ट है अपने फोर्थ ऑप्शन के अंदर. नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब. कि एसिड और बेस के सॉल्यूशन को जब एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं तो क्या होता है, भाई, टेम्परेचर. देखो एसिड प्लस बेस,
We know that form salt and water, and some amount of energy is also released in this chemical reaction due to neutralization, and this energy is known as heat of neutralization. Heat of neutralization. न्यूट्रलाइजेशन की हीट बोलते हैं इसको, और सीधी सी बात है बेटा, हीट तो निकलेगी और सॉल्ट फॉर्मेशन भी टेक्स प्लेस यहाँ पर हो ही रहा है, तो हीट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर प्रेजेंट इन फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, द apparatus given in the adjoining figure was set up to demonstrate electrical conductivity. ये जो सेटअप दे रखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन ये पूछा है कि इस कंडीशन में, इस गिवन कंडीशन में जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा. डायग्राम को एनालाइज करने पर मालूम चल रहा है कि इसमें डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, और बेस हो चाहे एसिड हो बेटा, डाइल्यूशन के बाद में आयंस तो प्रोड्यूस करेगा, और NaOH यदि गिवन होगा तो ये Na+ और OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, और आयंस यदि प्रोड्यूस किए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा. तो बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयंस फॉर कंडक्शन. बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. बल्ब विल नॉट ग्लो गलत, नॉट ग्लो गलत, नॉट ग्लो गलत. सही कौन सा है? ओनली सेकंड जो प्रेजेंट है बेटा थर्ड ऑप्शन के अंदर. क्वेश्चन है द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ. मास नंबर किसी एटम का किसके इक्वल होता है? तो बेटा एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर बोलो, ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास. अब नेग्लिजिबल मास में देखो बेसिक सी बात होता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो है 9.1 × 10⁻³ kg. प्रोटॉन का वेट होता है 1.672 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.675 10⁻27 kg. तीनों में हमको दिख रहा है कंपैरेटिवली सबसे जो कम मास है वो इलेक्ट्रॉन का ही है, तो यही नेग्लिजिबल मास की कैटेगरी में बनेगा इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट. कह रहा है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है उसका. इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. सही है. इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल. ना. डिटरमाइन द मास. ना. रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. ना. ओनली ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट, कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप इज ट्रू. आइसोटॉप के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइसोटॉप होते क्या है? जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो उनको अपन आइसोटॉप बोलते हैं. कि साहब आइसोटॉप्स आर कंसीडर्ड एज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास. ठीक है. सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास को अपन बोलते हैं यहाँ पे आइसोटॉप्स. और बेसिक सी बात यदि अपन एग्जाम्पल से सॉल्व करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लाइक 6Z12 एंड 6Z14 का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 6. और यदि न्यूट्रॉन चेक करें तो न्यूट्रॉन चेक करते हैं बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से. 12 - 6 = 6 न्यूट्रॉन, और 14 - 6 = 8 न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है. चेक कर लेते हैं. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं. ओनली ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट. तो ये अपना बेटा केमिस्ट्री का क्लास 10 CLC टेक्निक 2025 का सॉल्यूशन था. थैंक यू. Hello students, I am Ritika, educator of subject biology. Today we discuss the subject biology questions of class 10th. Now the first question is, organism capable of using carbon dioxide as the principal carbon source are called. ऐसे कौन से organisms हैं यहाँ पे जीव जो प्रधान कार्बन के स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने में सक्षम कहलाते हैं. इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपने फूड के प्रोडक्शन करने के लिए इसे यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं आगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोफ्स. और यहाँ पे आंसर क्या होएगा? स्वयं पोषी के लिए आ जाएगा. फर्स्ट हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स,
पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन से पार्ट में ये काम कर रहा है, मसल सेल्स के अंदर काम कर रहा है, तो मतलब उसके क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर ये फंक्शनिंग चलती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज microscopic examination of a blood smear reveals an abnormal increase in the number of granular cells। ग्रेनुलर सेल्स की बात कर रहे हैं, ये एक टाइप के सेल्स होते हैं जिस किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये WBCs की कैटेगरी के अंदर आते हैं, विद मल्टीपल न्यूक्लियर लोब्स। न्यूक्लियस के पास जो लोब्स प्रेजेंट है वो भी मल्टीपल में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप हैज इंक्रीज्ड इन नंबर। इसके अंदर से हमने नंबर बताना है कि कौन से टाइप के सेल हो जाएंगे जिनके नंबरिंग में डिफरेंस आएगा। ये डायरेक्टली है, जैसे आप लिम्फोसाइट्स की अगर बात करके चलते हो तो ये ए ग्रेनुलोसाइट्स के साथ में वो हमने बोला, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स किसका नाम हो जाता है, प्लेटलेट्स का नेम हो जाता है। इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन किससे होती है, यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए जो पार्ट काम कर रहा होता है यहाँ पे वो प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल पार्ट किस में प्रेजेंट हो जाएगा, ये फीमेल पार्ट के साथ में हो जाएगा। कॉज्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस एज अ स्टिमुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसके यहाँ पे एग्जाम्पल में आएगा, ये स्टिमुलस की तरह काम कौन कर रहा है, शुगरी सब्सटेंस काम कर रहा है। यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ तक जा रहा है, ओव्यूल तक। तो इसमें काम कौन कर रहा है, केमिकल। तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, हीमोट्रोपिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण में काम कर रहा है, मतलब टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आंसर डायरेक्टली है, इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, हाइपोथैलेमस काम करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following hormones stimulates the plant cells to grow in a manner such that the plant appears to bend towards light। अब ये देखिए, इसमें towards और away दो ही प्रोसेस हमने याद रखनी होती है। अगर towards की बात है मतलब क्या है, लाइट की तरफ जा रहा है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है कि पौधा प्रकाशन की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। की ओर, टुवर्ड्स, मतलब कौन काम कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सिन हार्मोन काम कर रहा है जो फोटोट्रोपिज्म में काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, नोट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है इसके अंदर से। यहाँ पे मीजोसोम तो प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, क्योंकि हम 70s 80s टाइप पढ़ के चलते हैं। इसका आंसर कौन सा बनेगा, न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो आंसर कैसे हो जाएगा, 67 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। सेमी मीन्स हो जाता है हाफ के लिए, ऑटो मतलब सेल्फ हो गया, नोमस मतलब कंट्रोल करने के लिए। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कौन सी हो जाएगी इसके अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है। क्योंकि वो क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास खुद का यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है और जो इसे हेल्प करता है ये काम करने के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। अब फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे कि नॉट पूछा है मतलब नहीं है कौन सा। एडिपोज टिश्यू तो होता है यहाँ पे, कार्टिलेज भी होता है, जबकि हमने कनेक्टिव टिश्यू के साथ पढ़ा है ये तो। ब्लड भी हमने कनेक्टिव टिश्यू, और आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, न्यूरोग्लिया, यहाँ पे तंत्रिका बंध, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। And last question is, which of the following is made up of dead cells। कौन डेड सेल से बना हुआ है, यहाँ पे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है। अगर देखिए, कोलेनकाइमा में आप पढ़ते हो, यहाँ पे तो लिविंग के साथ हमने पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा पढ़ा है। यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा भी लिविंग के साथ है, जाइलम पैरेनकाइमा भी है। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आएगा कॉर्क के लिए। यहाँ पे कॉर्क हमारा आंसर है, 70 का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन के लिए। थैंक यू।